नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज की इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो यूजी नेट मैनेजमेंट का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके पार्ट 6 जो कि आखिरी है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो ट्रेनिंग के पढ़ रहे थे। अभी हम लोग इससे पहले ट्रेनिंग क्या होता है, इसके प्रोसेस रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके 5 स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे ADDIE भी बोलते हैं। ADDIE 5 steps training process. A for analyze the training need. D design the overall training program. D develop the course. I implement training. E evaluate the course effectiveness. A analyze the training need, design the overall training program, develop the course, implement training, evaluate the course effectiveness. Job क्या होता है? A group of homogeneous tasks related by similarity of function, that is job. Psychologist Maurice Wittels ने job analysis को introduce किया था 1922 में। जॉब एनालिसिस का बेसिकली आप हिस्सा कर दे तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन करते हैं टाइटल, पोजीशन, लोकेशन, ड्यूटीज, रिपोर्टिंग, मशीन्स, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग करते हैं एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग, पर्सनल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, और इन दोनों से फिर जॉब इवैल्यूएशन होता है। इन दोनों के बाद जो होता है जॉब इवैल्यूएशन है। याद रखिएगा, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन। उसका वर्थ चेक करते हैं कितना वर्दी है। जॉब इवैल्यूएशन मेथड नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल में है रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड। एनालिटिकल में है फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड। ठीक है। कंपनसेशन क्या है? It refers to all forms of financial return, tangible services and benefits employees receive as a part of an employment relationship. Compensation management, it is an organized practices that involves balancing the work-employer relation by providing monetary and non-monetary benefit to the employer. Process of value-based compensation design, job analysis, job evaluation, salary survey and pricing, job match. Type of compensation, base pay, wages are paid on and समय के हिसाब से कितने घंटे काम किया उस हिसाब से किया जाता है। wages and salary add-ons, it includes overtime payment, shift differential, premium pay for working weekends and holidays, etc. Incentive pay क्या है? It is a pay for performance and commonly includes piecework in production and commission sales benefits. Indirect compensation that provides something of value to the employees. स्ट्रेस टाइप, यू स्ट्रेस, डिस स्ट्रेस। यू स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, नहीं एक आपको अंदर से एनर्जी, यानी ये डर जो होता है ना वो आपको आगे बढ़ाने वाला डर होता है। डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस, इसमें एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। आपको एक्यूट स्ट्रेस जो है एपिसोडिक स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक टॉक्सिक होता है, मतलब काफी जहरीला है भैया, वो अचानक से आदमी सुसाइड कुछ कर लेता है। ठीक है। HRM, human resource management, employee management, training management, employee recruitment, rewarding, business value, success, strategic objective, HRM के functions हैं जो HRM को perform करना होता है। Functions of human resource management, acquisition, human resource planning, external, internal, employee socialization, development में employee training, management development, career development, motivation, performance evaluation, job evaluation, pay and benefit, discipline, maintenance, safety and health, employee relation. 10 C's of human resource management, that is comprehensiveness, communication, creativity, competency, change, credibility, cost effectiveness, coherence, control and commitment. याद रखिएगा 10 C's of human resource management, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। that is comprehensiveness, communication, creativity, competency, change, credibility, cost effectiveness, coherence, control and commitment. Human resource development, appraisal, reward, organizational effectiveness and selection. ये आपको भी समझना पड़ेगा, जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
आपको स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को समझना होता है, सिचुएशनल फैक्टर को समझना होता है कि भाई जो स्टेक होल्डर है यानी जो पैसा लगा रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है एचआरएम में, या जो सिचुएशन है उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। गेस्ट मॉडल ऑफ एचआरएम स्ट्रेटजी, एचआरएम प्रैक्टिसेस, एचआरएम आउटकम्स, बिहेवियरल आउटकम, परफॉर्मेंस आउटकम, फाइनेंशियल्स आउटकम्स, इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, आपको एचआरएम में अलग अलग जो कंटेक्स्ट है, आउटर कंटेक्स्ट, इनर कंटेक्स्ट, एचआरएम कंटेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी कंटेक्स्ट, आपको वार्विक मॉडल जो है इसमें समझना पड़ेगा आपको इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, अलग यूनिट्स के भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आप इसी तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ। इसके कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नंबर गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर दें, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाएंगे।